हेलो दोस्तों, द आयरॉनिक शो के इस धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड काफी स्पेशल है। इंडीड हम आपके लिए एक रामायण बेस्ड पॉडकास्ट हमेशा लाना चाहते थे एंड फाइनली वो आज विक्रांत पांडे सर के साथ पूरा हुआ। विक्रांत सर IIM बैंगलोर के अलमनाई हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ रामायण के ऊपर रिसर्च करने में लगा दी। इंडीड ये कहा जाता है कि जिन रास्तों से श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी गुजरे थे ड्यूरिंग रामायण, विक्रांत सर ने वो पूरा ट्रेल फॉलो किया, वो पूरा रास्ता फॉलो किया, जिसके वजह से वो श्रीलंका तक भी गए। इंडीड उन्होंने अपना काफी टाइम श्रीलंका में भी बिताया है। उनकी बुक ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ राम बहुत जल्दी एक OTT पे वेब सीरीज के फॉर्म में भी आने वाली है। आपके लिए द आयरॉनिक शो का यह जबरदस्त एपिसोड विक्रांत पांडे सर के साथ एंजॉय। द आयरॉनिक शो में आपका बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन रामायण। एंड before we get into your experiences with Ramayana, that entire travel that you have done, followed the path of Sri Ram, Mata Sita and Lakshman ji, I would first like to know how I am Bangalore graduate leaving a corporate job, probably really high paying corporate job, goes into writing a book and following his passion of following our one of the greatest history or mythological history as people call it. Please sir, let us know how that happened, your journey and how you got into writing a book. Yes, Ronik. As you would realize, I found out that there is a difference between a hobby, what one does on a weekend, and what eventually could be a passion. Some people call it a mojo to identify that. Right. I started around 8 years back when I first translated Ranjit Desai's Raja Ravi Verma. Okay. This was when I was still working, and I found that the translation not only came out very well, but I was very lucky that my publisher, which was HarperCollins, actually gave me a sort of a carte blanche, said that if you find any good book in Marathi, we would be happy to get that English translation published. And to my surprise, I found that I had read a lot of Marathi literature. It's very Marathi, Bangla, Tamil, Malayalam. Some of these languages have very rich literature. Of course, Hindi as well. Right. And I found that, to my surprise, most of the best-selling Marathi books which I had read 20, 30 years back were not available in English. And I thought this was a fantastic opportunity, not only to make people aware of the superb literature which is there in Marathi, but also to make it available to a larger audience who otherwise would not read Marathi at all. And over the last 8-9 years, I have now published 12 Marathi bestsellers into English. Many of them were done by HarperCollins, some by Amazon Westland, and one of them by Pan Macmillan. I am also continuing to do my translations. Over the last 3 years, I realized around 3 years back that the kind of work which I had, not only about translations, but also some of the ideas I had which I wanted to write my own books, gave me a sort of an opportunity to say that the only way I can do justice to it is by probably doing it full time. I know there are a lot of eminent people in the corporate world who do multiple things. They do blogs, they take courses in IIM, they also write books while they're pursuing a very high career. But I thought that for me to do justice, let me do it full time. And now, in the last 3 years, I have become a full time writer. I started also getting ideas about various different genres other than translation when I was writing my own books. So one was, when I had done the translation of Girish Kuber's Tata, which got the Best Business Book Award in the English translation called The Tatas, How a Family Built a Business and a Nation. I had a lot of ideas on the business books as well. So one of my books which I did a year before last, was called the SBI Story, 2 Centuries of Banking. The Ramayana was a very fascinating story, Ronik. Let me talk about it as to how I got the idea for the book on the Ramayana travels. There are lots of books written on Ramayana. There are lots of translations on Ramayana. So our idea was not to write something which is already there for people to... Many scholars have done that, and we don't consider ourselves scholars. We are more passionate
and more in love with Ramayana than as a scholarly approach to it. But I found out, actually it started off with a conversation with my co-author Nilesh Kulkarni, whom I know for the past 25 years. So we were sitting one day and we asked, do you know where is Chitrakoot? And to our surprise, we asked this question, a set of questions to almost 100 people. The second question was, do you know what is Hampi famous for? Not the Vijayanagar kingdom, I am talking about thousands of years back. And most people did not Right. know that it is Kishkinda. You know, such an important part of Ramayana journey. People did not know where exactly was Chitrakoot. How far is it from Allahabad? How far is it from Lucknow or Ayodhya? People were not able to place it. It's Chitrakoot is really funny because part of it is in MP and part of it is in UP. Okay. Actually, sir, I was just going to ask you where exactly is Chitrakoot. Yes. So it is south of Allahabad and it is on the borders of MP and UP. Okay. And sir, what is the importance of Chitrakoot in terms of Ramayana? So Chitrakoot carries a very, very significant role in Ramayana because there are multiple things. Number one, it was the first place where Sri Ram, Sita Ma, and Lakshmanji actually decided to spend their Vanvas. So they traveled from Ayodhya, they went to Allahabad, they crossed the Ganga, they came to the south of Ganga, and then as they were traveling further down, they were told that they can stay in Chitrakoot. And they actually spent, out of the 14 years of Vanvas, they actually spent 11 years, 11 months, and 11 days in Chitrakoot. Okay. So almost 2 years of the 14 years one was they spent in Chitrakoot. 12 years, correct. So they actually would not have moved out of Chitrakoot had they not been told by Agastya Muni, Agastya Rishi, to then go into Dandakaranya and then carry forward and also clear the forest of all the demons and Rakshasas which were there in Dandakaranya, which was creating a lot of problem for the Rishis. So Chitrakoot is very important from the point of view that the first place they stayed, and they probably would have continued staying there had they not moved into Dandakaranya. So Chitrakoot is on one end of the Dandakaranya, one corner, and then they traveled all the way and they come to Panchavati, which is modern day Nashik, and it is at the other end of Dandakaranya. Okay. तो दंडकारण्य आज भी बहुत बड़ा एरिया है जो छत्तीसगढ़, एमपी और कुछ पार्ट महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में. तो पंचवटी जो है जिसको नासिक आज की डेट में नासिक के हिसाब से जानते हैं, राइट, वो दंडकारण्य का एक कोना था. और वहां पे ऑफकोर्स एक टर्निंग पॉइंट हुआ. वहां से जो है कहानी, पूरी रामायण की जो कहानी है वो पूरी चेंज हो जाती है क्योंकि माँ सीता का वहां पे अपहरण हुआ. एंड तब तक जो है वो सिर्फ एक वनवास जी रहे थे. कुछ राक्षसों को मारा, कुछ असुरों को उन्होंने मारा, पर ऐसी कहानी में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे कि पूरी रामायण जो आज हम जानते हैं वो वहां पे हुई. क्योंकि शूर्पणखा जब मिली राम और राम जी श्री राम को और लक्ष्मण जी को जब उन्होंने देखा तो वो इतनी शी वॉज इन लव एंड शी वेंट एंड प्रपोज्ड. उसने अपना रूप चेंज किया और उसने जाके सीधे इन दोनों भाइयों को पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ. तो श्री राम जी जो है उन्होंने लक्ष्मण के पास भेजा कि आप उनसे बात कीजिए, मैं तो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे हूँ. लक्ष्मण जी ने भी कहा नहीं, मेरी भी शादी हो चुकी है उर्मिला के साथ, तो मैं शादी नहीं कर सकता. थोड़ा सा वहां पे कुछ लोग उसके ऊपर एक सवाल उठाते हैं कि दोनों भाइयों ने थोड़ा शूर्पणखा के साथ थोड़ा मजाक किया. और उसका कारण ये था कि दे न्यू कि ये जो है राक्षसी है पर एक सुंदर रूप लेके आई है, और जब तक वो गुस्सा नहीं होगी वो अपने रियल रूप में नहीं आएगी. एंड देन शी गॉट वेरी एंग्री दैट यू आर टीजिंग मी. एंड देन व्हेन शी केम इनटू हर रियल राक्षसी रूप, देन लक्ष्मण जी ने जो है उसको, वो फिर भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने अपने तलवार से उनकी नाक काट डाली और फिर वो रोते हुए अपने भाई के पास गई, रावण के पास लंका में, कि ये दो भाई जो है ये मुझे तंग कर रहे, इनसे मुझे बचाओ. सर एक सेकंड जस्ट यहाँ पे, सो शूर्पणखा रावण की बहन थी, राइट? एंड व्हाट आई नो कि रावण ने ही शूर्पणखा के, आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ द नेम, बट रावण ने ही शूर्पणखा के हस्बैंड को शायद मारा था. करेक्ट. एंड प्रोबेबली रामायण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शायद ये जो आप अभी, मुझे एग्जैक्टली एरिया का पता नहीं था, तो आपने अभी जो क्लियर किया दंडकारण्य वाला,
वेयर शूर्पणखा केम इन, एंड वहां से ये रामायण का जो पूरा सागा शुरू होता है, शायद वो सबसे बड़ा एक पॉइंट होगा जहां से ये शुरू होता है. बिल्कुल. So while Shurpankh's husband was killed by Ravan, but she still went back to her brother कि मुझे Okay. बचाओ. उन्होंने फिर खर और दूषण को भेजा, उनको उन्होंने मार दिया श्री राम जी ने. तो फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि रावण को रियलाइज हुआ कि श्री राम को अगर पकड़ना है तो हमें कुछ इस तरह की ट्रिक करनी पड़ेगी. और फिर रावण जो है मरीच के पास आया कि तुम जो है एक डियर का रूप धारण करके, हरण का रूप धारण करके आ रहे हैं, एक गोल्डन डियर. और सीता माँ जो है वो बहुत अट्रैक्ट हुई कि मुझे इसको पकड़ के लाओ. और वो फिर कहानी होती है कि मरीच के पीछे श्री राम गए और फिर जब वो फाइनली उनको मारा, उसे मारा मरीच को, तो उसने ट्रिक किया कि श्री राम की आवाज निकाल के हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, इस तरह से. लक्ष्मण जी को पता था कि उनके भाई को कोई भी मार नहीं सकता, और वो सीता माँ को बार बार कह रहे थे कि ये मेरे भाई की आवाज नहीं है, ये कोई जादुई बदमाशी कर रहा है, मुझे यहाँ से नहीं हिलना है. और वाल्मीकि जो है इस पे बड़ा अच्छा बताते हैं कि दोनों के बीच में एक तरह से झगड़ा हुआ और माँ सीता जो है गुस्सा हुई कि आप अपने भाई को बचाने नहीं जा रहे हो और मुझे कुछ नहीं होगा. और अभी जो है एक नया एंगल, कुछ 600-700 सालों से एक नई कहानी जुड़ जाती है वो लक्ष्मण रेखा की. एक्चुअली वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का इस तरह का डिटेल्ड वर्णन नहीं है. उत्तरकांड में जरूर एक जगह आता है जब मंदोदरी रावण को पूछती है कि तुम तो एक सीधी सादी सी रेखा क्रॉस नहीं कर पाए और क्या तुम बात कर रहे हो, इस तरह से. पर जो वर्णन हम जो देखते हैं लक्ष्मण रेखा के बारे में कि लक्ष्मण जी ने वो रेखा बनाई और माँ सीता को कहा कि आप इसके बाहर मत जाओ और कोई जाएगा तो वो आग आएगी, जो हम टेलीविजन सीरियल्स वगैरह में देखते हैं, उस तरह की कहानी नहीं थी. सीता माँ जो है खुद एक वॉरियर थी, खुद उन्होंने शिव धनुष को ऐसे आसानी से उठा लिया था, उन्हें किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी. पर वो कहानी भी आज की डेट में एक मेटाफर जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो बन गया है कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो. मतलब आप तो सर ये लक्ष्मण रेखा का कौन सा, सर एक मिनट आपको मैं ये तो फिर ये आपने जैसे बताया कि जो बड़े जहाँ पे महाभारत के रामायण की स्टोरी लिखी हुई है, उन दोनों ही लिटरेचर में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है. तो इज इट बिकॉज कि जो हमारे जितने भी ये माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो भी हमारी स्टोरीज है रामायण की, महाभारत की फॉर दैट मैटर, ये कुछ हजारों सालों से ये शायद ट्रांसफर हो रही है एक बोलने के माध्यम से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ये बोलते बोलते वापस वोकल हिस्ट्री, ओरल ट्रेडिशन एक बन गई है. तो क्या कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं किसी ने कुछ ऐड किया, कहीं पे किसी ने कुछ माइनस किया और जाके एक जो फाइनल एक स्टोरी बनी वो थोड़ा सा कुछ मिर्च मसाला लगा के कि उसको एक रूप दिया गया? बिल्कुल, इस समय मिर्च मसाला भी नहीं कहूंगा. क्या होता है कि कुछ कुछ कहानियां जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से वो जरूरी भी कह सकते हैं या एप्ट है कि मतलब वो, जैसे आप लक्ष्मण रेखा की बात करो तो अगर आप 600-700 साल पहले, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कब ऐड हुआ, बट इसका एक वर्णन की तेलुगु रामायण में भी आता है. और जब ओरल ट्रेडिशन में बात आती है तो अपने ऑडियंस के हिसाब से जो कथाकार है, गोस्वामी तुलसीदास भी खुद कथाकार थे जिन्होंने अकबर के टाइम पे ये रामचरितमानस का ट्रांसलेशन किया, अवधी भाषा में लिखा ताकि कॉमन मैन पढ़ सके. उसके पहले संस्कृत में कोई पढ़ नहीं पा रहा था. अब आप देखो तो तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें ही और वाल्मीकि रामायण में काफी जगह पे अंतर आता है. एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे चित्रकूट में कहानी हुई थी कि इंद्र के 2 बेटे हैं, ये मयंक. तो मयंक ने एक जगह पे माँ सीता को देखा और नहा रही थी, तो उन्हें मन किया कि जाके इसे हम छुए. जयंत उनका एक और एक बेटा है, वो उसने कौवे का रूप धारण किया. अब वाल्मीकि जो है वो कहानी सुना रहे, तो उन्होंने बड़ा ओपनली लिखा है कि उस कौवे ने जाके सीता माँ के ब्रेस्ट को टच किया. अब तुलसीदास जी जो है ये डिवोटी है, ये राम कथाकार है, ये इस तरह के शब्द जो है वो माँ सीता के लिए कहना झिझक रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि जयंत ने जाके सीता माँ के अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चोंच मारी. अच्छा. क्योंकि वो, अब आप वाल्मीकि रामायण देखो तो उसमें जब रावण आता है और सीता माँ का वर्णन कर रहा है और बड़े बड़े इलेबोरेट और बड़े अलंकारित भाषा में वो सीता माँ का वर्णन कर रहा है कि आप देखो आपका फिगर कितना बढ़िया है, आप कितनी सुंदर हो,
एक तरह से कालिदास जैसे लगता था, उसी तरह का वर्णन है। पर तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जो है वो भक्त होने के कारण वो सीता माँ के प्रति इस तरह के शब्द उपयोग करने में थोड़ा झिझकते हैं। राइट। तो ये डिफरेंस तो तुलसीदास और वाल्मीकि में भी देखा जाता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या होता है कि जब ओरल ट्रेडिशन में कुछ कुछ कहानियां जुड़ती जाती हैं और उससे शायद जो मेन कहानी है रामायण की उसको अलंकारित होती है, उससे उसका एक अच्छा रूप आता है। तो इसलिए मैं राइट या रॉन्ग, या मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है या वो सही नहीं है। लक्ष्मण रेखा की जैसे हम बात कर रहे थे 600-700-800 साल पहले, लक्ष्मण रेखा एक तरह से सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बताती थी कि कोई स्त्री जो है वो अपने घर के बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर का जग जो है वो बड़ा, इट इज अ बिग बैड वर्ल्ड। और पति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि भाई आप अगर घर के अंदर हो, डेलीज के अंदर, तो मैं आपका संरक्षण कर सकता हूं, पर अगर आप खुले में अकेले चले जाओगे तो मेरा दायित्व नहीं बनता, मैं फिर आपको संरक्षण नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए लक्ष्मण रेखा जो है उसका महत्व आ गया और आज की डेट में उसे एक हमारे मेटाफर की तरफ यूज करते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो रामायण के साथ जुड़ती चली गई पिछले कुछ हजारों सालों से। और मेरे हिसाब से रामायण की वही ब्यूटी है कि हम उन सारी कहानियों का, जैसे एक यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, सी राजगोपालाचार्य का, राजा जी ने, जिन्होंने रामायण की कहानी बच्चों के लिए लिखी थी। कुछ कुछ जगह पे वो ट्रांसलेशन नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से वो कहानी लिखी। और एक जगह बताते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि प्रभु श्री राम ने एक धोबी के कहने पे सीता माँ को क्यों जाने के लिए कहा। अब इसके ऊपर राजा जी बड़ा सुंदर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि देखो, कुछ बातें ऐसी है जो हम एक कॉमन ह्यूमन बीइंग जो है, वो एक साधारण मनुष्य जो है, वो प्रभु श्री राम की बात हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। उस समय का क्या वातावरण था, उस समय उनकी मनस्थिति क्या थी। तो इस बात पर टिप्पणी करना, राजा जी कहते हैं, ये हमारे औकात के बाहर है। राइट। तो वो कहते हैं कि हम इस बात पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि वैसे भी जो रामायण से हम चीजें सीखना चाहते हैं उसमें इस पर्टिकुलर स्टोरी का कोई खास महत्व नहीं है, कोई खास जगह नहीं, तो उसे हम छोड़ दें। हम उस रामायण से वो चीजें सीखें जो हम अपने जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं, उससे हम खुद अच्छे बन सके, अच्छे इंसान बन सके। तो ऐसी चीजों पे डिबेट करने से क्या फायदा है, उसे छोड़ दीजिए, राजा जी वो कहते हैं। मैं भी उस बात को मानता हूँ कि रामायण में ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जो लोग अग्नि परीक्षा क्यों कराए उसे, अब सीता माता को, उस पे कहानी भी है कि सीता माँ जो है वो रियल सीता माँ नहीं थी, अग्नि में गई थी, और अग्नि की जगह पे जो एक डुप्लीकेट, जिस तरह से हम कह सकते हैं, वो सीता माँ थी। तो उन्हें वापस लाने के लिए वो अग्नि में गई और जो असली सीता माँ जो थी वो बाहर आ गई। तो इस तरह की भी कहानी है जो लोग इसको मानते हैं। और उसके ऊपर कमेंट करना कि आपने अग्नि परीक्षा क्यों कराई और श्री राम जो है वो सही थे गलत थे, ये शायद हमारा जो एज अ नॉर्मल ह्यूमन जो है उसके ऊपर प्रभु श्री राम के बारे में कमेंट करना शायद अनुचित होगा। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे मेरे एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं, शायद ठीक है मैं पूछता हूँ एक्चुअली। प्लीज सर, आपने जो अभी तक रामायण को जो जैसे आपने डिपिक्ट किया है, सो आपने पूरा जो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जिस रूट से गए थे, जिस पाथ से उनका वनवास का पूरा होके एंड देन टचिंग अपॉन श्रीलंका वॉर खत्म होके दे केम बैक टू इंडिया, राइट। तो जहां तक मुझे पता है कि आपने वो पूरा रूट एज इट इज कवर किया है टू फॉर योर रिसर्च, फॉर योर बुक, राइट। सो अगर मैं रामायण के स्टोरी को थोड़ा ब्रेक डाउन करूं तो 5 मेन कैरेक्टर्स हैं, श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, रावण एंड हनुमान जी। These are the main 5 characters and इनके पेरिफेरल के राउंड और भी बाली, सुग्रीव, देन ये सारा कुछ है। सर, थोड़ा सा ये टाइमलाइन आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से जो आपने रिसर्च की है, जो आपने जो बुक लिखी है, आपके अकॉर्डिंग ये जो पूरी रामायण की जो स्टोरी है ये कितनी पुरानी होगी और इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और क्या पाथ फॉलो होके वो वापस आया? देखो, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। एक बात तो सही है कि रामायण जो है महाभारत के पहले हुआ, राइट। ज्यादातर लोग कहते हैं कि महाभारत शायद 4000 साल के पहले हुआ होगा, तो उसके 2000 साल पहले, मतलब 6-7 हजार साल पहले ये कहानी है। मतलब आज अगर हम 2080 लेते हैं तो इट्स अराउंड 4000 BC
के आसपास की कहानी होगी, ऐसे लोग मानते हैं। मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से ये भी तय किया है कि 6-7 हजार साल पहले रामायण हुआ था। उस पर कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ लाना मुश्किल है, पर कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ जो है, जो उस समय की जो नक्षत्र थे, उस समय की जो वर्णन है, उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। हमारा मानना ये था कि हम उस जर्नी को फॉलो करें, उस पथ गमन पे हम जाएं जहां से श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी गए थे, और वहां की जो जुड़ी हुई कहानियां हैं उन कहानियों को समझें, उन जगहों में लोगों को मिले और उस जगह का क्या वर्णन है, क्या फीलिंग आता है, उसको हम महसूस कर सके। ये हमारा मेन उद्देश्य था। तो टाइमलाइन, आई होप आई एम गिविंग अ रफ एस्टिमेट, बट मैंने एग्जैक्ट उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया। ठीक है सर। कहानी हमने सिर्फ वनवास की हमने लेके चली थी। हमने श्री राम जी और माँ सीता का जो जो शादी हुई थी उसके बारे में, सीता जी जो पैदा हुई थी जनकपुर में या सीतामढ़ी में कुछ लोग कहते हैं, वहां का हमने वर्णन नहीं लिया है। हमने कहानी शुरुआत की है अयोध्या से, जहां दशरथ जी ने, राजा दशरथ ने कैकेयी के कहने पर श्री राम जी को कहा कि आप 14 साल के लिए वनवास में जाइए। तो कहानी वहां से शुरू होती है कि अयोध्या में जो है, इनको अयोध्या से बाहर निकलना है। तो तमसा नदी जो है वो क्रॉस करनी है, और क्रॉस करके सिर्फ इन लक्ष्मण जी जो है वो कहते हैं कि मैं भी अपने साथ जाऊंगा। जो कंडीशन जो थी वो था कि श्री राम जी को जो है वो 14 साल वनवास करना है। सीता माँ कहती है कि भाई मैं तो अपने पति के साथ मैं भी जाऊंगी, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई को अकेले नहीं छोड़ूंगा, तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो कंडीशन तो सिर्फ प्रभु श्री राम पे थी, पर ये दोनों जो साथ में जुड़ गए, और ये तीनों जो है निकलते हैं अयोध्या से, तमसा नदी क्रॉस करते हैं। सुमंता को प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखो ये सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो रात को जब ये सो रहे हैं तो आप अपना रथ इस तरह से घुमाओ कि अगले सुबह उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये रथ गया कहाँ। उनको ट्रैक्स फॉलो करेंगे तो उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, और तब तक हम तमसा जो है क्रॉस करके हम निकल जाएंगे, वरना ये सारे के सारे लोग मेरे पीछे पीछे आते रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ आए, इनको क्यों तकलीफ दे, वनवास मुझे झेलना है, इनको मैं नहीं जाना चाहता। फिर वो तीनों आगे निकलते हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां पे केवट की कहानी है, जो उनको क्रॉस कराता है गंगा, और गंगा क्रॉस करके इलाहाबाद, ये गंगा के साउथ दक्षिण तट पे आते, उत्तर से दक्षिण पे, और दक्षिण से क्रॉस करके इलाहाबाद से फिर उन्हें बताया जाता है कि आप चित्रकूट जाइए, और चित्रकूट में जो है वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। वहां से फिर आगे कहानी बढ़ती है दंडकारण्य से होते हुए, और वाल्मीकि और रामचरितमानस में दंडकारण्य का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। बड़ा लंबा सफर रहा होगा कि आप देखो तो चित्रकूट जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एमपी में है, अयोध्या के थोड़ा सा नीचे, इलाहाबाद के नीचे, राइट, वहां से पूरा क्रॉस करते हुए ये पश्चिम तट पे आ रहे हैं नासिक के पास, नासिक में ही जहां गोदावरी का उद्गम है, और वहां आके वो रुकते हैं। वहां से फिर जब माँ सीता का अपहरण होता है, देन दे आर फोर्स्ड टू ट्रैवल, जटायु से मुलाकात होती है। और सर एक नासिक वुड भी, आपने जो बोला कि माता सीता का वहां से अपहरण हुआ, तो नासिक वुड भी पंचवटी, करेक्ट, पंचवटी इज नासिक होती, सो टुडेज नासिक इज पंचवटी, करेक्ट, ओके। एंड अभी भी आप नासिक में जाओ तो आपको पंचवटी जो जगह है वो आपको देखने मिलेगी, और वहां पे इनका जो आश्रम था जहां रह रहे थे उस समय बड़ी सुंदर जगह थी, वो एक नदी किनारे, और वहां से जटायु से मिलते हैं, जो सर्वतीर्थ ताकेड़ करके जगह है, जहां जटायु का रावण ने एक पंख काट दिया और नीचे गिर जाते हैं। हाँ जी सर। श्री राम जी उनको मिलते हैं वहां पे, उनका वहां श्राद्ध करते हैं, क्योंकि जटायु की भी बहुत सारी कहानियां हैं दशरथ से जुड़ी, राजा दशरथ से, और प्रभु श्री राम जो है वो जटायु को एक पिता समान मानते थे, उनका उन्होंने वहां पे श्राद्ध किया। और फिर वो आगे जाते हैं दक्षिण की तरफ, उन्हें शबरी मिलती है, और शबरी उनको बताती है पंपा सरोवर पे कि आप जाके सुग्रीव से मिलो, और हनुमान से मुलाकात होती है। किष्किंधा जो जगह है, जो हम्पी, जिसे लोग आज की डेट में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप कर्नाटका जाओ तो काफी लोग हम्पी जाते हैं, विजयनगर किंगडम के, बड़ी सुंदर जगह है, और लोग ये भूल जाते हैं कि तुंगभद्रा के एक तरफ विजयनगर किंगडम था, और एक तरफ जो है वो अंजनेय पर्वत है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर मंदिर है, आप चढ़ के ऊपर जाइए, और वहां पे सुग्रीव से मुलाकात हुई, और पर बाली का जिस तरह से वध हुआ,
और फिर तीनों मिलके इस बात को डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे माँ सीता को खोजना है। पता तो है रावण ले गया, कहाँ ले गया पता नहीं। और हनुमान जी को भेजा जाता है कि आप पता लगा के आइए। और फिर वो आके बताते हैं कि उन्होंने जटायु के भाई को मिलते हैं, संपाति को, और वो बताता है कि रावण का जो मेन किंगडम है वो श्रीलंका है, और वो माँ सीता को श्रीलंका ले गए। और लंका जो है वो समुंदर की उस तरफ है, बीच में समुंदर है, एक आइलैंड है। और फिर उनके राइट। पूरी प्रिपरेशन के साथ ये पैदल चलते 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 किष्किंधा से होते हुए रामेश्वरम तट तक पहुंचते हैं। वो भी बड़ा लंबा सर, जर्नी। इससे इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मेरा एक लिसनर्स के लिए, मेरे लिए थोड़ा क्लैरिटी के लिए, किष्किंधा में आप जैसे आपने बोला कि वहां पे हनुमान जी अंजनी पर्वत में उनका बर्थ हुआ था, एंड दिस इंटायर ट्राइब करना शायद गलत होगा। ये जो पूरा वानर सेना जो हम कहते हैं, बाली सुग्रीव का किंगडम प्लस हनुमान जी का, ये तो दैट इज किष्किंधा। तो वहां पे सर, तो इनका जो श्री राम का जो, जैसे आपने बोला चित्रकूट, देन योर नासिक, ये उधर से होते हुए वो किष्किंधा पहुंचे थे। तो वहां पे सर ये जो इनका, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एपिक, आई थिंक मीट, जहाँ पे हनुमान जी और राम जी मिलते हैं। जी ये शायद हमारे माइथोलॉजिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक वो पार्ट होगा। बिल्कुल। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एक तरफ विष्णु के अवतार एंड श्री राम, जिनको हम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, और दूसरे तरफ उनके शायद सबसे बड़े भक्त हनुमान जी, जो हमारे लिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हनुमान चालीसा आई थिंक फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स पढ़ रहा हूँ, मे बी मोर देन दैट। तो एक वो माइंड में हमेशा पिक्चर आती है कि हनुमान जी ऐसे ही होंगे, राइट। राम जी की पूजा जैसे होती है, मतलब कुछ सर्टेन ओकेजन्स पे मोस्टली होती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट हनुमान जी के साथ जो एक लोगों का कनेक्शन है वो थोड़ा सा एक दूसरे तरह का कनेक्शन है। सर उस कनेक्शन के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? बिल्कुल। इसमें मैं एक कहानी बताता हूँ जो एंड में आती है, जब प्रभु श्री राम जो है सारा हो गया, उसके बाद जो रह रहे हैं, तब काल जो है, काल मतलब टाइम या मृत्यु, वो हम्म। आके श्री राम जी से मिलते हैं प्रभु राम से कि प्रभु आपका धरती पर समय खत्म हो गया है, अब आप स्वर्ग वापस चलें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओके। तो उस समय और भी कहानियां, पर मैं हनुमान जी को लेके मैं कहानी बता रहा हूँ। तो सारे लोग सरयू में चले जाते हैं, सरयू नदी में हाँ। वो विलीन हो जाते हैं पानी में, और वहां से फिर वो स्वर्ग चले जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम को कि मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूं जहां पे आपका नाम जो है लिया जाएगा, और वो धरती पे ही लिया जाएगा। स्वर्ग में तो ओके। आप विष्णु हो, हाँ। आप विष्णु भगवान हो, पर धरती पर आप प्रभु श्री राम हो, और मैं यही रहना चाहता हूं, क्योंकि यहीं पे आपका राम नाम जो है लिया जाता है, राम नाम, नॉट विष्णु। अच्छा, तो ठीक है सर। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ठीक है, फिर हनुमानगढ़ी पे आप अयोध्या के रक्षक के तौर पे, हनुमानगढ़ी जो है अयोध्या का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और वहां ओके। जो हनुमानगढ़ी है, वहां हनुमान जी जो है रहते हैं एज अ, और हनुमान जो है चिरंजीव है। राइट। टू आंसर योर क्वेश्चन रोनिक, व्हाई पीपल लव हनुमान, और व्हाई वी थिंक ऑफ हनुमान जी मोर देन श्री राम इन सम वे, कि आपने राइट। जैसे कहा कि रामनवमी पे काफी जगह पे हम श्री राम की बातें करते हैं, पर हनुमान जी को हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम हर शनिवार को उनकी पूजा करते हैं। ये कारण ये है मेरे हिसाब से, मैंने जितने लोगों को मिला और जितने पंडितों से और पुजारियों से मैंने बात की, हनुमान जी जो है वो हमारी तरह प्रभु श्री राम के भक्त हैं। इसलिए हमें हनुमान जी जो है ज्यादा अपने लगते हैं, क्योंकि वो भी हम, ओके। पर वो अल्टीमेट भक्त है। हाँ। हम हनुमान की तरह बनना चाहते हैं, हनुमान जी की तरह की हमारे में हम छाती फाड़ के दिखाएं तो हम बता सके कि हमारे अंदर राम है। तो एज अ डिवोटी, और हम सब जो प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं, उनके लिए हनुमान जी जो है वो अल्टीमेट है, कि मतलब ऐसा अगर कोई भक्त बन सके तो फिर तो ओके। मतलब आपको और कोई किसी चीज की जरूरत ही नहीं। इसलिए हनुमान जी हमें शायद ज्यादा अपने लगते हैं, ज्यादा प्यारे लगते हैं। श्री राम को जो है हम भगवान की तरह, भगवान ही है वो तो, पर हनुमान जी को हम अपना समझ के थोड़ा और प्यार दिखा सकते हैं, बिकॉज वो राइट। हमारी तरह डिवोटी है।
वो खुद भी भगवान है, पर वो डिवोटी है प्रभु श्री राम की, जो हम सब है। और एग्जैक्टली। इनका जब मिलन हुआ तो वाल्मीकि ने बड़ा अच्छा एक वर्णन दिया है प्रभु श्री राम के बारे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफरेंस दिखाना चाहूंगा विष्णु के दो अवतार में। एक कृष्ण जी है महाभारत में, और एक श्री राम जी है रामायण में। हाँ। कृष्ण जी को हर समय पता है बचपन से लेके कि वो भगवान ही है। श्री राम जो है उन्हें कोई कोई जगह पे वाल्मीकि दिखाते हैं कि वो विष्णु की तरह अपना रूप दिखाते हैं या अपनी पावर दिखाते हैं, पर ज्यादातर हर जगह पे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। वो जब सीता माँ चली जाती है तो वो बिल्कुल परेशान है, वो रो रहे हैं, वो उसको विरही राम उसे रूप दिया है, विरही राम, कि वो बिल्कुल परेशान है कि मेरी पत्नी को रावण लेके चला गया, अब मैं क्या करूंगा, लक्ष्मण बताओ मैं कैसे जीऊं। इस तरह की भाषा कृष्ण भगवान कभी यूज नहीं करते। उन्हें हरदम पता है कि मैं तो विष्णु ही हूं। तो जब हनुमान मिलते हैं तो उनको एक डाउट आता है कि आपके पास इतनी पावर है क्या। और अच्छा। एक सीन है जिसमें वो श्री राम जो है वो तीर छोड़ते हैं और सारे पेड़ लाइन में एक के बाद एक जो है वो चीरते हुए निकल जाता है। और तब हनुमान जी को विश्वास होता है कि श्री राम जो है ये एक साधारण मनुष्य नहीं है, ये विष्णु का ही अवतार है। पर राम जी को बहुत बार वाल्मीकि ने खुद दिखाया है कि उन्हें खुद ही वो पता नहीं है या उस तरह की बात नहीं करते कि मैं खुद ही विष्णु भगवान हूं और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। इसलिए वो हनुमान जी को और सबकी पूरी सेना लेके जा रहे हैं रावण को हराने के लिए। वरना अगर वो कहते कि मैं, जैसे कृष्ण ने अपना रूप दिखाया महाभारत में, जब दुर्योधन ने चैलेंज किया कि तुम कौन हो, तो उसने अपना रूप दिखाया। श्री राम जो है वो कभी इस तरह का, रामायण में वाल्मीकि जो है इस तरह का अपना विशाल काय रूप, विष्णु का जो रूप है वो नहीं दिखाते। ओके। तो मीटिंग जो है बड़ी पॉइग्नेंट, अगर आप रामायण पढ़ो तो इन दोनों का जो मिलाप था, जो पहले मिलन हुआ, वो बहुत ही सुंदर तरीके से गोस्वामी तुलसीदास ने और वाल्मीकि दोनों ने उसको बहुत सुंदर वर्णन दिया है उसका। और एज यू सेड, इट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वहां से फिर पूरी सेना बन के राइट। एक पॉइंट पूछा कि ये वानर नहीं है, ये फॉरेस्ट डेलिंग ट्राइब है, जो वन में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास बहुत पावर्स है, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है, वो बहुत लंबी कूद लगा सकते हैं, पेड़ उखाड़ के फेंक सकते हैं, उनके पास बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिसका उपयोग श्री राम ने किया। उनको साथ में ले गए और रावण को हराने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सर, जैसे आपने भी बोला कि ये लोग मतलब दे वर नॉट भगवान, बट वो लोग एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब थे जो कि एक्सट्रीमली सुपर ह्यूमन पावरफुल थे। करेक्ट। बट उसमें से अगर हम हनुमान जी की बात करें, सो ही इज अ गॉड, ऑफ कोर्स। राइट। तो सर वो फिर कैसे, मतलब उस चीज को थोड़ा बता सकते हैं कि हनुमान की, बाकी हम सुग्रीव या बाली या किसी को एज हम भगवान नहीं देखते, बट हम हनुमान जी जो उसी ट्राइब में से हैं, उसी कम्युनिटी से हैं, उनको हम एज ए भगवान ट्रीट करते हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो आगे जाके राम जी के सबसे बड़े भक्त बने? He was a god. He was born as a god, but he's part of the tribe जो वहां पे रहे। Okay. और आगे जाके उनका डिवोशन जो है वो गॉड का पार्ट छोड़कर डिवोशन का पार्ट जो है, आज सब जगह लोग उस बात को, जैसे लक्ष्मण जी का भी देखो तो शेषनाग का रूप है। हाँ। पर हम लक्ष्मण जी को शेषनाग के रूप में उन्हें नहीं हम पूजा करते, पर श्री राम के भाई, और एक भाई कैसा होना चाहिए, उस रूप में हम लक्ष्मण जी को ज्यादा पूछते हैं। सिमिलरली लक्ष्मण जी, हनुमान जी जो है वो भगवान होते हुए भी हम उन्हें एक, उनकी मैक्सिमम जो छवि, जो छाया हमारे मन में है, वो है कि मैंने छाती फाड़ के दिखा दिया कि देखो मेरे अंदर राम बसे हुए हैं, और वो राम जी के सामने ऐसे खड़े हैं, बैठे हुए नीचे, सिर नीचे है। तो ये छवि जो है, ये हम हनुमान जी को आज हम उस रूप में ज्यादा जानते हैं, न कि वो खुद भगवान होते हुए। क्योंकि वो डिवोशन वाला पार्ट जो है
वो सबको भाता है, क्योंकि हम खुद भी श्री राम के भक्त हैं, और हनुमान जिस तरह से कर रहे हैं वो देख के सब जो है वो हनुमान की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए वो इमेज राइट जो है बड़ी पॉपुलर हो गई। सर, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन फ्रॉम हनुमान एंड गोइंग टू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। सो हनुमान जी का ये कहा जाता है कि वो भी अवतार हैं शिव जी के, करेक्ट। राइट? तो ये कहीं ना कहीं ये था कि जैसे शिव, अगर जैसे मैं टीवी सीरियल्स की बात करूं या फिर जो हमने पढ़ा भी है, शिव जी जब मेडिटेट करते थे वो हमेशा विष्णु को नहीं, वो राम जी की आराधना करते थे। और राम जी शिव जी की आराधना करते थे। बड़ा राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, हाँ। हर जगह पे जहां जहां प्रभु श्री राम ने अर्चना की है, आराधना की है, वो सिर्फ शिवलिंग की ही की है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि विष्णु जो है वो शिव के भक्त हैं और शिव जो है वो विष्णु के भक्त हैं। राइट सर। सर आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर, आगे मतलब यहाँ पे किष्किंधा में इनकी मुलाकात हुई, देन हाउ द स्टोरी गोज, वो स्टोरी फिर श्रीलंका की तरफ जाता है, उस पर थोड़ा सा बता तो दीजिए। हनुमान जी को भेजा गया कि भाई आप पता लगाओ कि सीता माँ को रावण जो है कहाँ ले गया है, और बहुत जगह खोजा, बहुत जगह खोजा, कहीं मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जो भारत खंड है वहां खोज रहे थे, पर वो तो श्रीलंका में है। तब उन्हें ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा के आसपास कहीं पे उन्हें जटायु के जो भाई हैं संपाति, वो मिलते हैं। वो भी इसकी कहानी है कि जब दोनों ऊपर गए थे सूरज को छूने के लिए, तो संपाति के हाँ पंख जो हाँ है वो जल गए थे। तो संपाति इज सिटिंग इन द केव, और वहां पे उनको हनुमान जी को बताते हैं वो कि आप जो सीता माँ को खोज रहे हो, वो रावण जो है वो समुद्र के उस पार श्रीलंका में ले गया है। तब हनुमान जी वापस आते हैं और बताते हैं कि वो समुद्र के उस पार जो है हमें श्रीलंका जाना पड़ेगा। अब एक लंबी मार्च है फ्रॉम किष्किंधा, बहुत लंबा सफर है, क्योंकि उनको रामेश्वरम तक पहुंचना है, और रामेश्वरम से ही फिर वहां पे चिंतन होता है कि हम कैसे अब श्रीलंका जा सकते हैं। और वो जो ब्रिज जो बनाया गया उसका काम जो पूरा होता है, और फिर वो श्रीलंका पहुंचते हैं। उसके पहले रामेश्वरम का जो मंदिर है जहाँ पे राम जी ने शिव जी की आराधना की और वो स्थापित किया शिवलिंग, और फिर जो है उन्होंने श्रीलंका में प्रवेश किया। उसके पहले ऑफ कोर्स हनुमान जी जो है वो जाते हैं, माँ सीता को मिलते हैं, कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ माँ सीता यही है। और वो कहानी सबको पता होगी कि वो कैसे गए और उन्होंने अंगूठी दी और राइट। सीता माँ जो है, तो वो होने के बाद जब पक्का हो गया कि हाँ सीता माँ यही है, तो श्रीलंका का जो पार्ट है वो बहुत सुंदर है। वो भारतीय इंडिया में बहुत कम लोग वहां गए। श्रीलंका टूरिज्म जो है बड़ा पॉपुलराइज करता है, और 12-15 दिन आप अलग अलग जगहों पे घूम के आप जो रामायण की जो कहानी पूरी वहां हुई, वो बहुत सुंदर एरिया है, वो बड़ा देखने लायक है। सर, ये पूरा जो टूरिज्म बोल रही है मतलब रामायण के ट्रेल को फॉलो करते हुए है? यस। ओके, तो जब मतलब वहां पे उनको ले जाया गया, सीता माँ को रावण ले जाया गया, दैट प्लेस इज कॉल्ड अशोक वाटिका। अशोक वाटिका, सॉरी। तो वो पूरा ट्रेल फॉलो करते हैं कि कैसे वो हुआ, देन श्री राम केम इनटू श्रीलंका, फिर वो पूरा ये ट्रेल टूरिज्म के थ्रू फॉलो करवा रहे हैं वो। बिल्कुल। तो अशोक वाटिका है लंका में, और 3-4 बहुत बहुत सारी जगह है देखने के लिए। एक जैसे बहुत सुंदर जगह है, इट इज अभी क्या है लंका में बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस बहुत है, सो बहुत सारे मंदिर जो है वो हिंदू और बुद्धिज्म दोनों के एक तरह से मिक्सचर है, बहुत सारे राइट। मंदिर। तो एक जगह है कॉल्ड दिवोराम पोला, ओके। जहाँ पे सीता माँ की आखिरी परीक्षा हुई थी लड़ाई के बाद, अच्छा। और जो ओरिजिनल माँ सीता है जो अग्नि में से बाहर आई। तो उस जगह को लोग बहुत मानते हैं, आज के डेट में भी बुद्धिज्म में उस जगह को मानते हैं कि वहां पे आप कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। तो वहां जाके अगर मैंने एक प्रण लिया कि रोनिक ओके। मैं ये पैसे आपको 5 दिन में लौटाऊंगा, तो आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको कोई विटनेस, वो जगह ही विटनेस है। ओके। तो ओके। ऐसी जगह है। फिर एक स्त्रीपुरम करके जगह है जहां पे देर आर लॉट ऑफ केव्स इन श्रीलंका, जहां पे रावण ने जो है माँ सीता को एक जगह नहीं रखा, वो जगह जगह लेके उनको पता था कि वहां पे कभी भी अटैक हो सकता है, तो सीता माँ को लेके हर जगह जाते थे। तो स्त्रीपुरम में एक बहुत सुंदर केव्स है, वहां पे जाके आप वो केव्स देखो। वो केव्स जो है कनेक्ट होते हैं
इनकी जो आर्मी थी, रावण की जो आर्मी है, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू जाते थे। और मैंने किताब में वर्णन भी किया है कि कैसे हम एक जगह पे गए जहां पे हाँ जमीन हाँ। के अंदर हम गए, और वहां से आप पैदल जा सकते हो। हम तो ज्यादा नहीं गए, 101 मीटर गए, पर 2-3 किलोमीटर आप जा सकते हो। अच्छा सर, तो आप ये इस पूरे ट्रेल में आप खुद से गए हैं हाँ हाँ, श्रीलंका? ऑफ कोर्स। ओके। हम हर जगह जा जाके हमने देखा। सिकिरिया जो रावण का जो फोर्ट है, जो पैलेस था उसका, एक जगह है, नाउ इट इज कॉल्ड हॉटन्स नेशनल पार्क, और वहां पे ओके। एक लैंड्स एंड करके जगह है, वर्ल्ड्स एंड, वो बड़ा स्टीप जगह है। तो मैंने किताब में वर्णन किया है जहाँ हनुमान का हनुमान का फाइट हुआ विद अहिरावण एंड महिरावण। तो हनुमान का खुद का बेटा है मकरध्वज, वो वहां पे गार्ड कर रहा था, उसे नहीं पता कि वो हनुमान का बेटा है। और अहिरावण और महिरावण को मार के उन्होंने, हनुमान की तो वो कहानी है वहां पे एक, तो वो एक हॉटन्स नेशनल पार्क करके जगह है, उसमें एक वर्ल्ड एंड करके देर इज अ वेरी वेरी स्टीप रेवाइन। तो देर आर सच वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू सी इन श्रीलंका। और श्रीलंका तो मैं जरूर लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अयोध्या, चित्रकूट, इलाहाबाद, रामेश्वरम, हम्पी, किष्किंधा, पंचवटी, ये सब जगह तो देखने लायक है ही, बहुत ही सुंदर है। उसमें तो बहुत आस्था के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। श्रीलंका में आस्था के भाव कम है, इट इज मोर फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। जो सारा एरिया जो है अभी पूरा टी गार्डन्स और माउंटेन्स है, तो नेचुरली भी बहुत सुंदर है वो देखने के लिए। तो बड़ा मजा ओके। आता है कि आप टी गार्डन्स के थ्रू जा रहे हो पूरे दिन, और फिर आप ये जगह पे आते हो जहाँ पे वो टनल बना हुआ है, कुछ केव्स बने हुए हैं, तो वो भी बहुत देखने लायक है। और हम 12-14 दिन हम श्रीलंका में थे, और हमने ये सारी जगहों पे जा जाके वहाँ के जो है वो कहानियों को समझने की कोशिश की। सर, तब का जो पूरा ये आइलैंड लंका का जो अभी जो करंट श्रीलंका है, उस टाइम पे जो रहा होगा ऑब्वियसली, अब तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट, क्योंकि काफी सारे आइलैंड के मैक्सिमम पार्ट तो सबमर्ज हो चुके हैं। लोग कहते हैं, तो जो हमने कुछ क्या रिसर्चर्स को मिले, हम कुछ स्कॉलर्स को मिले जो श्रीलंका में है, जो वहाँ का रामायण के ऊपर, श्रीलंका की रामायण जो है उसके ऊपर काफी संशोधन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कम से कम 5 या 6 गुना बड़ा होगा शायद श्रीलंका। ओके। अभी जो दिख रहा है वो काफी छोटा पार्ट है, बट लकीली सिकिरिया जो रावण का फोर्ट है, जहां पे उनकी लड़ाई हुई, जहां से धनुषकोडी से जो श्रीलंका गए, हम उस जगह पे जा नहीं पाए, जाफना के अंदर आता है, जाफना टेरिटरी है, और अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो हम ओके। वहां नहीं हाँ। गए। पर वो सारा एरिया लकीली अभी भी प्रिजर्व्ड है, और आप उसको देख सकते हो। पर ओरिजिनल श्रीलंका जो है 5-6 गुना बड़ी रही होगी इसके कंपेरिजन। सर, जैसे हम यहाँ पे इंडिया में श्री राम को पूजते हैं, तो जहां तक एक बिलीफ मुझे पता है कि लंका में, श्रीलंका में अभी दे वर्शिप रावण, नो, या दैट इज वहां पे, तो हाउ, नॉट। मतलब वो कैसे रावण को परसीव करते हैं इन देयर? हम लोग को भी लगा था कि वो शायद रावण को वहां पे पर वैसी कोई कोई कहानी नहीं है। रावण का कहीं से भी वर्शिप तो नहीं होता है, श्री राम को ही लोग भगवान मानते हैं। रावण वॉज अ बिग रूलर, रावण वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, जिसने बहुत सारी गलतियां की, बट ही इज नॉट कंसिडर्ड गॉड इन एनी मैनर। शायद एक ही फर्क दिखा कि जितना हम रावण को शायद इंडिया में विलन की तरह, और एक बिल्कुल ही व्यभिचारी, और जिसके मतलब कुछ लोग कहते हैं कि 10 जो सिर है, तो 10 अलग अलग दुर्गुण वगैरह, उस तरह की बातें हैं, उतना देखने में नहीं मिलता है श्रीलंका में, थोड़ा कम देखने में मिलता है। पर डेफिनेटली ही इज अ विलन, डेफिनेटली ही इज अ नेगेटिव ह्यूमन बीइंग, एंड ओनली श्री राम इज द गॉड, उसमें कोई डाउट नहीं है। श्रीलंका में भी सेम चीज देखने को। बट सर, टू अ सर्टन एक्सटेंट रावण वाज शिवाज बिगेस्ट भक्त, वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे, एंड Absolutely. उनके जब तक वो थे शायद उनके जैसा बड़ा स्कॉलर कोई नहीं था, Correct. लर्नेड, एंड क्योंकि उन्होंने भी शिव जी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था करेक्ट। विथ हिज भक्ति एंड ऑल। तो क्या वो पार्ट प्ले करता है कि दे डोंट पोर्ट्रे रावण इन ए नेगेटिव मैनर, बट वो राम की ही पूजा करते हैं, बट दे डोंट, जैसे हम यहाँ पे, आपने जो बोला कि हम यहाँ पे इंडिया में वो जो रावण दहन वगैरह करते हैं, हाँ, वो दे नहीं, डोंट फॉलो दैट प्रैक्टिस। that is not practice, you are right, he was a
ग्रेट स्कॉलर. इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल कि इतना इंटेलिजेंट और इतना स्कॉलर होने के बाद विजडम नहीं है. इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल टू विजडम. राइट. एंड दिस इज गुड एग्जाम्पल. यस, यू आर राइट कि रावण दहन, जैसे हम तो दहन करते हैं दशहरे के दिन, तो वो प्रथा जो है वो श्रीलंका में नहीं होती. शायद उसे वो एक बहुत बड़ा किंग, बहुत पावरफुल, क्योंकि रावण की आप टेरिटरी देखो तो एक सारा दंडकारण्य जो है वो काफी असुर जो है ये रावण के अंडर आता था पूरा टेरिटरी. यहाँ पे तो किष्किंधा पे. दंडकारण्य वुड बी इंडिया, जो आपने इंडिया. पहले बताया था. हाँ हाँ, तो लंका से लेके पूरा इंडिया तक ये रावण की टेरिटरी थी. बिल्कुल. शूर्पणखा जो पंचवटी में आई थी, तो दैट वाज पार्ट ऑफ रावण टेरिटरी. खर और दूषण को उसने Okay. भेजा कि आप जाके राम को मारो, तो वो उसकी टेरिटरी थी. यहाँ पे इनका किष्किंधा वॉज वेरी पावरफुल किंगडम. सुग्रीव ने एक बार रावण को हराया था, हाँ हाँ हाँ. तो किष्किंधा वो पार्ट जो है वो पूरा इनके अंडर था, सुग्रीव बाली के अंडर. पर रावण का टेरिटरी वॉज नॉट श्रीलंका. इट वॉज एक्सटेंडिंग टू अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टुडेज ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ रावण टेरिटरी. So he was a very, very powerful ruler. He was a highly learned person. He used to play the veena. शिव के सबसे बड़े भक्त थे. तो वो सारी चीजें होने के बावजूद भी रावण जो है वो एक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यभिचारी इंसान. मतलब क्या जरूरत है कि किसी और की पत्नी को आप उठा के ले आओ. तो वो ईगो और हर तरह के जो नेगेटिव क्वालिटीज हम कहते हैं एक इंसान में, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद विजडम और इंटेलिजेंस में जो फर्क है वो नहीं आ पाया. तो पावर तो बहुत आ गई. शिव से उनको वो भी मिल गया, सबसे बड़े भक्त. पर उसने गलतियां इस तरह से की, अपने कुबेर वो भाई को जो है वो मार. तो हर जगह पे ईगो, लस्ट, पावर अनएंडिंग था और उसे मरना ही था. और मरने का तरीका ये था कि विष्णु जो है उन्होंने ही आके राम के रूप में. तो ये पूरी कहानी जो बनती है, वो तो ये भी कहते हैं कि सीता का अपहरण जो है, मां सीता का, वो होना ही था. नहीं तो रावण जैसा जो मनुष्य है, असुर है, वो कैसे मरेगा. कोई कारण चाहिए विष्णु को. राइट राइट. कि जाके वो श्री राम के रूप में कि मेरी पत्नी को आप ले गए तो मैं आके आपको मार डालूंगा. तो ये कहानी पूरी जो है उसी लिए बनती है. पर ये कहानी सच कहानी है, इतिहास है. और माइथोलॉजी हम लोग बहुत बार उसको मतलब ऐसे लूजली हम माइथोलॉजी कहते हैं, पर मैक्सिमम जो हमने देखा अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक का जो सफर था, उसमें कहीं भी ये डाउट नहीं आता कि ये कहानी सचमुच हुई थी या नहीं. 100% हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी ओरल ट्रेडिशन में अगर चल रही है तो तभी चल सकती है जब वो सच है. राइट. तो वो डाउट हमें कहीं भी नहीं आता. ओके. बहुत लोग प्रूफ मांगते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ तो 7-8 हजार साल पुराना आपके पास कोई पैलेस या कोई ये तो मिलेगा नहीं. बट राइट. दैट डज नॉट मीन कि इट डिड नॉट टेक प्लेस. एंड मोर इम्पोर्टेंटली द डिवोशन, द काइंड ऑफ स्टोरीज यू गेट मेक इट नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट रीअफर्म योर फेथ कि हाँ भाई ये तो पक्का हुआ था. और वो कहानी सुनने में मजा तो एक तरह से आता है, पर जैसे हमारे वो हनुमानगढ़ी में जो वहां के जो पुजारी हैं, उन्होंने कहा कि देखो आप जब ये पूरी रामायण के जो पथ पे जाओगे, आपको कहानियां मिलेंगी, आप लोगों से मिलोगे, कुछ हो ना हो, आप पे जरूर बदलाव आएगा. राइट सर. एक्चुअली आपसे अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू जब मैं आपसे भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो एक जो आपने खुद से वो जी है ना, जो आपने पूरा अपना ये जो ट्रेवलॉग आपने लिखा है, उसकी वजह से जो आपका पूरा ट्रेवल हुआ ये रामायण के पाथ पे, तो वो एक ना हमें फर्स्ट हैंड मतलब महसूस करने के लिए मिल रहा है. इंडिड सर, मेरी सेकेंड एपिसोड जो हुई थी पॉडकास्ट की वाज विद अ लेडी मिसेस अनुराधा गोयल. तो शी इज अ ट्रेवल ब्लॉगर एंड उन्होंने भी वो इंडिया के मतलब एंशिएंट टेम्पल्स वगैरह वो काफी घूमी हुई है एंड शी वो रिसर्च वगैरह करती है. शी ऑल्सो मेंशन दिस सेम थिंग कि रौनिक, जब आप ये हमारे एंशिएंट जितने टेम्पल्स है ना,
उन पे आप जाओगे ना, तो आपको ये जो कहानियां हैं महाभारत की, रामायण की, आप इन टेम्पल से आप कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज ऑल दीज स्टोरीज हैव ट्रेवल्ड थ्रू ऑल दीज एरियाज, और वहां वहां उनके इम्प्रिंट्स हैं। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो जो हम कहीं से सीरियस नकार देते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बट आप अगर देखोगे दोज थिंग्स आर देयर। एब्सोल्युटली, इसके लिए जब आप जाते हो तो इट इज नॉट जस्ट, अभी जैसे हम तुलसी गोस्वामी तुलसीदास तो अकबर के वक्त थे, मतलब इट इज अ वेरी रिसेंट, हाँ हाँ, चार 500 साल पुरानी कहानी है वो। और जब आप राजापुर जाते हो जहाँ पे तुलसीदास जी रहते थे, और आप उनके ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट देखते हो, और तुलसीदास जी जो है वो राम भक्त थे, राम कथा सुनाते थे, ब्राह्मण थे जो राम की कहानी सुनाते थे। और उनको ये महसूस हुआ कि संस्कृत में लोग पढ़ नहीं पा रहे, क्यों ना मैं इसे अवधी भाषा में लिखूं, कि कोई कॉमन मैन भी राम की कथा पढ़ सकता है, उसे किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं, किसी पुजारी की जरूरत नहीं, कोई पंडित की जरूरत नहीं, खुद ही पढ़ सकता है घर में। तो कभी रामायण अभी हमारे पास एक लिटरेचर फॉर्म में किन किन लैंग्वेज में और किस नाम से अवेलेबल है अभी हमारे पास? आई थिंक ये तो सारी भाषाओं में है, इसके अलावा कुछ इसके वर्जन्स भी आ गए हैं, जैसे मेन जो अगर मैं बोलूं कि ये रामायण के नॉट ट्रांसलेटेड वन, जो मेन, जैसे हाँ, एक आपने बोला तुलसीदास जी का है। तुलसीदास का अवधी में, वाल्मीकि का एकनाथ का लिखा हुआ भावार्थ रामायण है मराठी में, कृतिवास ने लिखा हुआ बांग्ला में है, एक तेलुगु में, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, पर एक तेलुगु में जो है वो भी तुलसीदास के पहले लिखा हुआ है, 14वीं या 15वीं शताब्दी में। इस तरह, और एक कंब रामायण है तमिल में। तो ये 5-6 जो है, इनको एक उड़िया में भी है, पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये मेन जो भाषा है, उड़िया, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, मराठी, अवधी, संस्कृत, इनको काफी लोग मानते हैं कि रेफरेंस पॉइंट की तरह लोग उन्हें यूज करते हैं। सर, आपके स्टोरी के लिए भी, आपके बुक के लिए और आपके रिसर्च के लिए भी, क्या आपने इन लिटरेचर्स का कहीं पे कुछ रेफरेंस पॉइंट लिया था, या इनसे कुछ आपने हेल्प लिया था? एब्सोल्युटली। तो हमने वाल्मीकि का हिंदी में ट्रांसलेशन देखा, अवधि का हमने ओरिजिनल में पढ़ा। हम्म, सो एक भावार्थ रामायण मराठी में जो है वो मैं मराठी में पढ़ा। राइट। तमिल का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा कंब रामायण का, और कृतिवास का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा जो बांग्ला में लिखा हुआ है ओरिजिनली। ओके। तो इनको हमने रेफर किया ताकि हम कुछ कहानियों का क्रॉस रेफरेंस ले सके कि ये वहां पे हुई थी या नहीं हुई थी। ओके सर, आपके ये पूरे रिसर्च के थ्रू, आपके पूरे ट्रेवल के थ्रू, आई मीन एब्सोल्युटली श्योर कि आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जो जिन्होंने आपके दिल में जगह बना ली। एक दो सर्टेन इंसिडेंट्स जो एकदम आपके हार्ट के बहुत क्लोज है, मतलब जो आपको एकदम बाय हार्ट, मतलब आपको सुनाने में भी अच्छा लगता हो कि ये मेरे साथ हुआ, एंड दिस इज व्हाट हैज मेड मी, मतलब थोड़ा होता है ना, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है एक दो इंसिडेंट से, तो वैसा कुछ हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। जैसे मैंने बताया रोनिक, एज अ ऑथर, लेखक की तरह मुझे वो बात बहुत बहुत इम्प्रेस की जब हम राजापुर गए। यमुना, राजापुर से काफी हाइट पे नीचे आपको यमुना दिखती है, बह रही है, बहुत सुंदर जगह है, जहां पे तुलसीदास की जो डिसाइपल है उनकी जनरेशन वहां पे रह रही है। और उन्होंने हमको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया जो तुलसीदास जी ने जिस कागज पे लिखा था, वो ओरिजिनल कुछ कागज उनके पास भी है, बाकी गवर्नमेंट के पास है। और दो चीजें मुझे बहुत बहुत इम्प्रेस की। एक तो कि इस उम्र में तुलसीदास की पैशन देखिए आप, कि उन्होंने रामचरितमानस लिख के रामायण को एक कॉमन मैन के हाथों में पहुंचाया। ये काम कब किया इन्होंने? एक तो काम बहुत महान है, और दूसरा उन्होंने 70 साल की उम्र के बाद वो काम शुरू किया। तो एक लेखक की तरह मुझे वो बहुत बहुत इंस्पिरेशनल लगी कि कोई भी काम आपको शुरू करने के लिए पैशन के अलावा उम्र की जरूरत नहीं कि उम्र का कोई बाइंडिंग हो, आप कभी भी कर सकते हो। आई वॉज वेरी 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 इम्प्रेस्ड एंड रियली टच्ड बाय बाय दैट पार्ट। तो किसी और से आप मिले हो ऐसा कुछ इंडिया में? जैसे आपने भी हम्पी का बताया था कि हम्पी का इम्पोर्टेंस लोग शायद हम एक बस वो किंगडम के अलावा और ज्यादा हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। हमने जब वो हनुमान का जो बर्थ प्लेस है हम्पी में, वहां पे हम गए तो अंजनेय पर्वत, तो वहां पे हमने देखा कि एक, आई एम ऑल्सो फ्रॉम, आई एम बैंगलोर, और वहां के जो पंडित है, इज अ यंग गाय,
यंग मतलब लेस देन 40, ओके। और वो IIM बैंगलोर के MBA होने के बावजूद उनका वो पुश्तैनी वो काम था उस मंदिर को संभालना। और आज जो है उन्होंने अपना सारा जॉब IT इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो छोड़ के वो वहां पे आके सिर्फ एक पंडित का काम कर रहे हैं। और उन्होंने मजाक में कहा कि मेरा बेंगलोर में जो घर था, तो मेरा जो कार पार्किंग का जो गराज था उसी साइज का आज मेरा पूरा घर है। और एक किताब में भी हमने उसके बारे में लिखा है। एंड सर इतना बड़ा डिसीजन लेना, मतलब आपने अगर उनसे बात की होगी तो पॉसिबल कैसे होता है? अगर मैं किसी नॉर्मल आदमी के बोलूं कि किसी भी, मतलब अगर मैं खुद के बारे में भी सोचूं कि सारा कुछ छोड़ के मैं एक जगह एक मंदिर में रहूं, सिर्फ वो माइंडसेट आती कैसे? आपको उनसे बात करके क्या लगा बेसिकली, वो कैसे वो कर पाते हैं ये चीज? इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ रोनी कि इट इज नॉट जस्ट दिस पर्सन whom we met in हम्पी। हम्म। ऐसे हमें पूरे हमारे ट्रैवल में अनेकों लोग मिले जिनको आप बड़े सरप्राइज आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये लोग जब तक आप बताते नहीं हो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी पोस्ट पे थे या क्या कॉर्पोरेट में क्या काम कर रहे थे। उन्होंने ये छोड़ के सिर्फ, जैसे हमको चित्रकूट में हम बहुत सारे मंदिरों में गए जहां 24/7/365 मतलब कंटिन्यूस मानस का पाठ होता है, रामचरित मानस का, और ओके। पिछले 50-60 सालों से हो रहा है। वो नॉन स्टॉप, मतलब कहीं रुकता नहीं है? नहीं रुकता है। रौनिक आया 2 घंटे पाठ करके चला अच्छा। गया, उसके बाद विक्रांत आया, विक्रांत ने और 3 घंटे पाठ किया, उसके बाद कोई और आ गया। ऐसे करके पिछले 50-60 ओके। सालों से 2400 घंटे मानस का पाठ हो रहा है। तो ऐसे आपको बहुत लोग मिलते हैं पूरे भारत में, एंड नॉट जस्ट प्रीस्ट इन हम्म। हम्पी। आप नर्मदा की परिक्रमा करने चले जाओ, जगह जगह पे आपको लोग मिलेंगे जो पहले उनको आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप उनको पूछोगे नहीं, या जब तक कोई स्पेसिफिक कारण से वो बताएंगे नहीं कि मैं पहले क्या करता था। पता चला कि बहुत बड़े करोड़पति थे वो, और आज जो है वो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। ओके। तो ये भारत की बहुत एक, मैं कहूंगा कि महानता है कि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जिनको आप परिचित होने के बाद शायद वो बताएं कि वो पहले क्या थे। राइट। और उससे आपको लगता है कि मैं जो ये मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, और मैं कुछ, तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ये तो पूरे पूरी जिंदगी जो है इन्होंने सिर्फ, जैसे परिक्रमा में जो मैंने नर्मदा परिक्रमा का भी काफी मैंने रिसर्च किया है, ओके। और वहां पे आपको बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। आपको हिमालय में मिल जाएंगे, आपको जगह जगह पे, पर वो बताते नहीं है वो कि मैं एग्जैक्टली। पहले क्या था। तो ये दूसरा एक अनुभव था कि हमको ऐसे बहुत लोग मिले, और उनके बारे में जब पता चला तो हमें और भी अचंभित तो किया ही, पर अपने आप को और छोटा महसूस किया कि यार क्या ये सोच रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, मैंने किया। ये तो 40-40 साल से लोग कर रहे हैं और इसके बारे में बोलते भी नहीं। राइट। राइट। सर श्रीलंका में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो आपका, जब आप श्रीलंका में 2 हफ्ते थे, वहां पे कुछ ऐसा आपको बहुत मैजेस्टिक एक्सपीरियंस लगा हो? श्रीलंका में नेचुरल ब्यूटी के साथ एक्सपीरियंस बहुत सुंदर देखने मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्त्रीपुरम में जो रावण का केव है, हम्म। जो सिकिरिया फोर्ट है जो रावण का पैलेस और फोर्ट था, बहुत सुंदर, बहुत ही मैजेस्टिक जगह है। जैसे मैंने बताया कि हॉटन्स नेशनल पार्क में जो वर्ल्ड एंड करके जगह है, हम्म। जहाँ पे आई रावण मही रावण के साथ हनुमान की लड़ाई हुई, तो वो सारी जगह एक सीता एलिया करके जगह है जहाँ रावण हनुमान जी सबसे पहले पहुंचे, और वहां चिन्मय मिशन का एक मंदिर है। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर जगहें देखने मिलती है श्रीलंका में, जो घूमने में भी बहुत मजा आता है, और रामायण से जुड़ी हुई है, तो वो आस्था भी बनी हुई है। इट्स रियली वर्थ विजिटिंग दोस प्लेसेस। सर मैं इतना आपको डीप इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जिस सिटी से हूँ, देवघर से, जो मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी, विच इज एक ज्योतिर्लिंग है। यस तो वहां पे भी रामायण के काफी ट्रेसेस हैं, यस रामायण के टाइम के, रावण का आना, और वहां पे बजरंग बली का, मतलब हनुमान जी का प्रेजेंस, ये सब कुछ पहाड़ है। अभी मुझे पता नहीं कितना सच है क्या है, क्योंकि मैंने उस बारे में कभी उतना जाना नहीं है, टू बी वेरी वेरी फेयर। एक पहाड़ है
जहाँ पे दो चट्टाने हैं अलग, मतलब बिल्कुल ऐसे हैं। कहा जाता है यहाँ पे हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया, छाती चीर के दिखाया था कि यहाँ पे राम है। तो ये प्रेजेंस वहां पे भी है सर। और बचपन से ये स्टोरीज हमारे कानों में आ रही है, हमने देखा है, वो वहां वहां गए हैं। तो ये जो रामायण की जो स्टोरी है, इट रियली फैसिनेट्स अस। तो हमें भी जानना होता है कि ये जो आपका, फॉर दैट मैटर, रावण जब शिव जी को लेके जा रहे थे, फिर जो गणेश जी आए, जो ये पूरी जो स्टोरी है, एंड देन ही वेट, उन्होंने गणेश जी के हाथ में शिवलिंग दिया क्योंकि उनको बाथरूम जाना था। तो वो चीजें कहा जाता है कि वहां पे हुई थी। करेक्ट, करेक्ट। सो दिस इज बिकॉज मेरा इतना जानने का इच्छुकता मेरे लिए अंदर इसलिए बहुत ज्यादा थी कि कुछ बिल्कुल, चीजें। ये कहानियां आपको हर जगह मिलती है। जैसे आप एक मैंने और एक किताब में सोमनाथ का वर्णन किया था। तो हाँ सोमनाथ हाँ। एक यूनिक जगह है जहाँ पे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग है, जो ओके। सोमनाथ मंदिर। हाँ हाँ। और तो शिव जी का है, और विष्णु राइट। की भी कहानी जुड़ी हुई है, क्योंकि श्री कृष्ण का जो अंतिम अंतिम क्षण जो है, वो सोमनाथ के पास ही भालका तीर्थ कर जगह है, वहां पे हुआ था। तो शिव जी ओके। और विष्णु दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां सोमनाथ से जुड़ी हुई है, सोमनाथ जगह से जुड़ी हुई है। तो और वो थोड़ा सा इस पे आप एक्सप्लेन करेंगे, आपने जो कृष्ण जी के बारे में यहाँ पे बोला। बहुत सुंदर है, क्योंकि कृष्ण जी के जो अंतिम क्षण जो थे, हाँ वो हाँ। एक एरो लगता है उनके पैर में, अंगूठे पे, ओके। और उसके कारण जो है उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि वो तो कभी ना कभी उनको अपना अवतार जो है छोड़ के विश्व को वापस जाना है। अब लोग ये कहानी सुनाते हैं कि जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया, तो उनका हार्ट जो है वो सोमनाथ समुद्र के किनारे, अरेबियन सी पे, राइट। तो वो होते हुए जो है वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, उड़ीसा में। ओके। और आज भी जगन्नाथपुरी में जब मंदिर में जब वो मूर्ति की हर 12-14 साल, कभी 8 साल, कभी 12 साल में वो मूर्ति वो टूट जाती है। लकड़ी की बनी हुई है, क्योंकि वो नीम का कच्चे नीम की लकड़ी से बनता है। ओके। और जब उसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स आते हैं, तो उनके जो वहां के जो पुजारी हैं, जो उसको अंधेरे, पूरे अंधेरे कमरे में उसको बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ बहुत इमेंस पावर जो है वो ट्रांसफर होती है पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में। और वो लोग मानते हैं कि आज के डेट में भी वो कृष्ण जी का हार्ट है, वो बहुत पावरफुल। और जब तो भी बेसिकली विष्णु जी का हार्ट है वो, विष्णु का हार्ट है। विष्णु जी का हार्ट है, और वो ट्रांसफर होता है, वो अपने हाथ से ट्रांसफर करते हैं, बट दे करेक्ट। कैन नॉट सी इट। दे कैन नॉट सी इट, दे आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड दे आर इन अ टोटली डार्क रूम। और वो जब हो रहा होता अच्छा। है, तो पूरे जगन्नाथपुरी के लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, क्योंकि वो इतनी पावर है वो, कि इट कैन डिस्टर्ब ऑल द ग्रिड्स। तो ओके। पूरी इज इन टोटल डार्कनेस इन दैट पीरियड जब वो ट्रांसफर होता है। और वो पुजारी जो है वो कभी भी वो देखते नहीं है, वो ब्लाइंड फोल्डेड बनाते हैं मूर्ति को, और सिर्फ बाहर आके उनके ऊपर वो बड़ी बड़ी आंखें लगाई जाती है। और वो अच्छा। नीम की लकड़ी जो है उससे बनाते हैं। तो यहाँ पे सोमनाथ में अगर आप देखो, तो ये सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। जो लोग कहते हम्म। हैं रावण ने बनाया, रावण के बदले लोग कहते हैं कि मून गॉड ने बनाया। तो पता नहीं कितने हजारों साल पुराना है। और कृष्ण भगवान की भी कहानी वहां जुड़ी हुई है, क्योंकि उनके लास्ट क्षण जो है, अंतिम क्षण, वो वहां थे। और वहां जब वो धरती को छोड़ के चले गए अपने विष्णु रूप में वापस, तो उनका हार्ट जो है वो आज के डेट में जगन्नाथपुरी का है। तो जगन्नाथपुरी की भी बहुत कहानियां जुड़ी हुई है, जो कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ओके। इंडिया में ये सारे मंदिरों में जो कहानियां जो है, ये बहुत फैसिनेटिंग है। और राइट। वो वहां जाने से ही उसका अनुभव करने में मजा आता है। सर, आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें कुछ टाइम तो हमें लगा कि हम आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये आपने जो शेयर किया, तो आपको कैसा लगता है? आप कई जगह आप जाते हैं, बोलते हैं, तो आप, आई थिंक आप जब भी बोलते हैं सर, आपके अंदर वो पैशन दिखता है। आप बहुत पैशनेटली इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं एंड करते हैं। तो सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं सिर्फ लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हम लोग ने जो अनुभव किया, और वो अनुभव में मजा इसीलिए आया क्योंकि हम खुद जाके चित्रकूट में, अयोध्या में, इलाहाबाद, इलाहाबाद में तो कम पड़ा, अयोध्या, चित्रकूट, हम्म। पंचवटी, इन जगहों पे रह के, उन जगहों पे जब आप घूमने जाते हो, देखने जाते हो, तो वो अनुभव जो है वो, और आज की डेट में तो गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है ताकि उन राइट। जगहों को और भी अच्छा बनाया जाए। जब सरयू किनारे आप खड़े हो और आप इमेजिन कर रहे हो कि प्रभु श्री राम कैसे पानी में यहाँ चले गए, तो
वो अनुभव जो है वो वहां जाने से ही मिलता है। तो किताब तो मैं कहूंगा लोगों को कि किताबें पढ़िए। अभी इसके ऊपर एक ट्रैवल सीरियल भी बन रहा है, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जो है ओके इस पे एक सर, आपकी बुक पे? हमारी किताब पे, ओह लवली सर, लवली। और इस साल ओटीटी पे आएगा वो, तो ओके। वो भी देखने में लोगों को मजा आएगा। पर उसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि आप खुद जाके वहां देखें तो और भी बहुत मजा आएगा। सर थोड़ा सा 2 मिनट अगर अपने बुक के बारे में बता दें। हाँ, तो ये किताब जो है वो इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रेवल्स विद रामायण करके हर्पर कॉलिंस ने इसे पब्लिश किया है। ये किताब है, और ये पेपरबैक फॉर्म में है। पेपरबैक फॉर्म में इसका फायदा ये है कि इसके अंदर जो है हमने एक मैप भी डाला हुआ है। ओके सर, ये वही मैप है जो आप पहले मुझे बता रहे थे कि कहाँ से ये कहानी शुरू हुई है, कैसे कैसे पूरा ट्रेवल हुआ? दैट्स राइट, दैट्स राइट। ओके। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, अभी मैं नाम नहीं बता पा रहा, प्लीज, पर श्योर सर। इट विल कम ऑन ओटीटी ऑन ऑन अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म वेरी सून। वो पूरी शूटिंग खत्म हो गई उनकी, अच्छा। और ये किताब को लेके इन्होंने इस किताब का ही जो मेन यूज किया है, और एक ट्रैवल के फॉर्म में तो बहुत मजा आएगा। और प्रोड्यूसर भी जो है बहुत बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, तो आई एम श्योर कि वो जो ट्रैवल सीरियल होगा बहुत मजा आएगा। पर डेफिनेटली खुद जाके देखने में जो मजा आया वो तो सबसे श्योर श्योर श्योर। सर एक्चुअली मतलब हमारे दिमाग में जो हम एक्चुअली जो हमारी जो जनरेशन है, तो हमारे दिमाग में अगर मैं रामायण का एक पिक्चर बताऊं तो हमारे लिए वो अरुण गोविल, राम है, दीपिका जी, सीता जी हैं, दारा सिंह जी, हनुमान जी हैं, तो वो पिक्चर एकदम अंदर बैठा हुआ है। और हनुमान जी का एक और पिक्चराइजेशन होता है क्योंकि हम डेली हनुमान चालीसा हमारे घर पे ही रहता है, हम देखते रहते, तो वो एक पिक्चराइजेशन हमारे दिमाग में आ जाती है। ओटीटी पे ही एक सीरीज आई थी, एनिमेटेड सीरीज थी हनुमान पे, बहुत ही अच्छा सीरीज वो। एकदम बिल्कुल हनुमान पे ही बेस्ड था, उसमें Yeah. ज्यादा, तो वो भी बहुत अच्छा था। मतलब एग्जैक्टली मतलब जो हमने देखा था, इट इज वेरी वेरी एनिमेशन था, बहुत अच्छा था। एनिमेशन था, बहुत अच्छा था। उसके 2 सीजन आए थे। सर आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें कुछ टाइम तो हमें लगा कि हम आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट।